With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student friend follower, today we are going to discuss Ted Hughes will discuss one of poem That Morning by Ted Hughes. As I have already told you about Ted Hughes' life, Sylvia Plath's life, we've discussed in detail about Ted Hughes' life, and today we are going to learn about. Today we shall learn Ted Hughes. Ted Hughes as a poet of nature, and we will also learn violence and peace in nature. According to Ted Hughes, nature consists of violence and peace, love. So both the characteristic, both are found in nature. As we have already know, when we discussed about Wordsworth, William Wordsworth says, nature is a healer, soother, comforter. It guides, directs, and teach a man. But here, poet is telling, Ted Hughes says that poet is having both aspect. Nature is having both aspect, destructive and constructive. So both the aspects are available in nature. He points out these two aspects in nature. Ted Hughes, he points out in nature. So let's see one by one. So today's task is we shall learn That Morning by Ted Hughes, and then we'll cover two assignments. One is a theme of violence in nature. We'll also see some Ted Hughes poetry. How does Ted Hughes deal nature? So these two assignments will be covering. So let's discuss about That Morning first. In That Morning, poets say that I am on fishing expeditions, and once I am on fishing expeditions and I go to Yorkshire. This is one of the city of the England, and I go there, and what I find that the people they are beating drum, and after that he sees that there are a lot of salmon in the river. So salmons are a silver kind of color, and it's just a shining fish. It's very beautiful fish. So he says that I am in the water up to my waist, and I am in the water, and lot of fishes, they are surrounding me. So I am just standing amongst the fishes, just like I'm performing a ritual. So what happened? God has given me divine, it's a power of divine. I felt like performing ritual, religious ritual in the fishes, performing rituals in river. So the fishes has surrounded
poet. Fishes have surrounded poet. And he used a lot of images, alliterations, assonance, and what he finds that due to this divine power, I'm feeling that soul has separated from body. Since I am under the influence of the divine, or a kind of divine powers, so these shining like salmons, these have given me a light, and due to this light, poet's body is separate from the soul. And he says that once I have a little doubt, all things, all beautiful sight will be vanished. So he want to stay in that positions because no soul is separated from the body, and poet is enjoying this scene. Since soul has been separated from the body, and he wants to stay all the time in the river. And he also used one of the imagery. Here is the imagery that the water over there, just like the cup, the mountains are cup, and all the fishes are in that waters. So the mountains like that, they have formed it just like a cup, and all the fishes, they are inside, and the sight he is in front of him is like that. All the water is just like in a mountain like cup, and that is inside, and there are a lot of fishes inside, and poet is enjoying. Poet does not want to leave this sight at all. So mountain are like cups, and he is enjoying. And further he says that the plants, they have given a special purple color to the water, because since there are a lot of plants, and these beautiful plants, they have given a purple like color to this a kind of water. And further he moves further. Poet keep on telling that as he was just in a rapture, or a kind of ecstasy, and he's just enjoying in this water. He was amazed while enjoying all this sight. They saw that there are two golden color bears. They just jump into the river, and swimming like the children's. So here poet is telling the two aspect: innocence as well as cruel side of nature. They started swimming like children. So here poet is telling that the bears, they are just swimming like the children's. While swimming, they just caught two fishes in their paws. They caught fishes in their paw. They pierced, they tore into pieces, started eating. Here he tells the two aspect of nature. One is innocent, and other is cruel, violent. So here he is in fact telling the two side of the nature. Nature is having a healing, comforting, soothing, as well as nature is a destructive, nature is a cruel, nature is a violent. So violent and innocence, violent, innocent, good, bad, destructive, constructive. So both side of the nature is being presented in front of the poet. Poet says that among us the fishes, I have got a new light. I enjoyed and learned new knowledge due to the light of these salmon fishes. So let's see further. So here poet say, we came where the salmons were so many. पोएट कहता है कि हम ऐसी जगह पर आए, we came where salmons were so many. पोएट एक्सपेडिशन के एक फिशिंग एक्सपेडिशन पर है, and he is with the friend, and he visited Lancaster. He is visiting a place, and over there he sees there are a lot of people. They are beating the drums.
सो वी कैम वेयर द सैल्मन्स वर सो मैनी, हम ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ सैल्मन्स जो हैं, सैल्मन फिश बहुत ज़्यादा थी। सो स्टडी, वो इतनी मुस्तकिल, कांस्टेंट और इतनी ज़्यादा थी और इतनी मुस्तकिल मजाजी में थी। सो स्पेस, सो फॉर एम्ड, वो एक अपने इंस्टिंक्टिव, नेचुरल और कांस्टेंट और मुस्तकिल मजाजी से उसके अंदर, पानी के अंदर मौजूद थी। इंस्टिंक्टिव होता है जबिल्ली तौर पर, जैसे वो अपने फंक्शन कर रही होती हैं। तो सैल्मन फिश, दे वर इन सो मैनी, दे वर स्टेडी, दे वर कांस्टेंट, दे अपनी मुस्तकिल मजाजी और अपनी मुस्तकिल और सो स्पेस, सो फॉर एम्ड, और अपनी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या तरीके से पानी के अंदर चल रही थी। ऑन देयर इनर मैप्स, इनर मैप मीन पानी के अंदर अपने मैप, अपने फ्लो में, अपने इंस्टिंक्टिव फ्लो में। इंग्लैंड कुड ऐड ओनली अ सूटी टिवलाइट साउथ यॉर्कशायर्स। तो इंग्लैंड जो है, कहता है कि इंग्लैंड कुड ऐड ओनली सूटी, सूटी का मतलब होता है ब्लैक, टिवलाइट। इंग्लैंड में साउथ यॉर्कशायर के इलाके के अंदर इवनिंग जो है, मॉर्निंग जो है वो एक टिवलाइट, झटपटे की सूरत में होती है। इंग्लैंड कुड ऐड ओनली अ सूटी टिवलाइट ऑफ द साउथ यॉर्कशायर। साउथ यॉर्कशायर इंग्लैंड के अंदर जो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, वो कहता है कि ऐसे टिवलाइट की शक्ल में होती है, एक अंधेरा सा होता है, जैसे झटपटा सा होता है, इस पोजीशन इस तरह की होती है। हंग विद द ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ द लैंकेस्टर्स, और लैंकेस्टर के लोगों ने अपने गले में ड्रम्स डाल रखे हैं, ढोल जैसे होते हैं वो डाले हुए हैं। एंड दे आर, हंग का मतलब होता है लटकाना। लैंकेस्टर के इलाके के, लैंकेस्टर के लोगों ने अपने गले में ढोल लटका रखे हैं, और दे आर बीटिंग ड्रमिंग, दे आर बीटिंग दिस ड्रम, और वो उन ड्रम्स को बजा रहे हैं। टिल द वर्ड हैड सीम कैप्साइजिंग, वर्ड विल अपसाइड स्लोली, अपसाइड स्लोली का मतलब, कैप्साइजिंग का मतलब लिखें कि दुनिया का पलटना, जैसे किसी शिप का पलटना, जहाज़ का पलटना, दुनिया का पलट जाना। तो वो कहता है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि जैसे टम्बलिंग भी, इसको हम कैप्साइजिंग का मतलब लिख लें टम्बलिंग, ओवरटर्निंग स्लोली लाइक अ बोट। यानी वो सीन जो सैल्मन का वाटर के अंदर जो सीन था, सैल्मन का वाटर के अंदर सीन जो है, वो इस तरह का नज़ारा दे रहा था कि वो हमें इस तरह का नज़ारा दे रहा था कि जैसे इस तरह का इम्प्रेशन, इस तरह का नज़ारा उससे आ रहा था कि जो दुनिया है वो आहिस्ता आहिस्ता टम्बलिंग डाउन हो रही है, ओवरटर्निंग हो रही है, स्लोली ऐसे टम्बलिंग डाउन हो रही है, ऐसे अपसाइड डाउन हो जाएगी कि जैसे कोई बोट जो है, जस्ट लाइक बोट, लाइक बोट। लाइक बोट या शिप, दोनों सेम ही है। Solemn to stand there in a fallen light. Solemn to stand there in a fallen. Solemn to stand there in a fallen light. Fallen light होता है dim light. हम बड़ी कहता है संजीदगी से खड़े थे, संजीदगी से खड़े थे कि जैसे कोई डिम लाइट के अंदर, डिम लाइट के अंदर हम कहता है कि बड़े संजीदगी से खड़े थे। वेस्ट डीप इन द वाइड सैल्मन स्विंग मैस। स्विंग मैस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में। वेस्ट डीप इन द वाइल्ड सैल्मन, यहाँ पे एक उसने इमेजरी यूज़ की है कि जस्ट लाइक परफॉर्मिंग रिचुअल, परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल। वेस्ट डीप वाइल्ड सैल्मन स्विंग मास, हम कहता है कि लातादाद, बहुत बड़ी तादाद में सैल्मन फिश की बहुत बड़ी तादाद में हम क्या राइटर जो है वेस्ट डीप, अपने पानी के अंदर वेस्ट डीप तक खड़ा है,
एज फ्राम द हैंड ऑफ द गॉड, और सैल्मन स्विंग मास एज फ्राम द, और मछलियाँ जो हैं सैल्मन मछलियाँ इस तरह आ रही हैं इर्द गिर्द के जैसे कोई गॉड के हैंड से आ रही हों, दैट एज इफ दे आर कमिंग फ्राम द डिवाइन साइड, दैट गॉड इज गोना शो अस समथिंग डिफरेंट, सो दैट दीज ऑल फिशिंग these all fishes they come together in a collection, and they are just coming from the hand of the God wants to show us something. There the body is separated golden and imperish as the body separate from the soul. यहाँ पे पोएट कहता है देयर द बॉडी, वहाँ उस रिवर के अंदर क्या है, हमें ऐसे फील हुआ सेपरेटेड कि हमारा बॉडी जो है वो सोल से जुदा हो गया, सेपरेट हो गया, बॉडी और सोल जो है एक दूसरे से जुदा हो गई हैं, और ये सोल मिल गई हैं इस लाइट के अंदर। ये जो सुनहरी लाइट जो है इनसे निकल रही है, गोल्डन लाइट निकल रही है, उसके साथ मिल गई है। गोल्डन एंड इम्पैरिश एज बॉडी गोल्डन, और हमारी सोल जो है इस गोल्डन सुनहरी इम्पैरिशेबल फ्रॉम द डॉटिंग थाट्स। अब यहाँ पे ये जो इस्तेमाल हुआ है, ये हिफन जो इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब होता है कि पोएट इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता है, और भी इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रॉम इट्स डाउटिंग थाट्स, और हमारी रूह जो है वो बॉडी से अलग हो गई है, और वो किसके साथ मिल गई है, बॉडी दैट हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सोल, एंड आवर सोल दैट हैज़ मिक्सड into the golden light of the salmon fish, and it is enjoying with it from its doubting thought। और हमारे अंदर एक ये डाउट आ रहा था, मेरे अंदर कहता है पोएट कहता है हमारे अंदर ये डाउट आ रहा था कि कहीं एक भी डाउटफुल, एक भी स्केप्टिकल थॉट, एक भी ड्यूबियस, एक भी सस्पिशियस थॉट ये ना हो कि इस नज़ारे से हमें जुदा कर दे। स्पिरिट बीकन लिट बाय द पावर ऑफ द सैल्मन्स। स्पिरिट बीकन का मतलब होता है चमकना, स्पिरिट रूह, लिट बाय द पावर ऑफ द सैल्मन, सैल्मन के सुनहरी कलर से हमारी रूह जो थी वो रोशन हो गई। दैट कैम ऑन केप्ट ऑन कमिंग, और ये ऐसे आ रही थी, कैम ऑन, तो ये है क्या है, एलिट्रेशन इसको कहते हैं। पोएट ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे उसने क्या साउंड यूज़ किया, दैट came on and kept on coming। तो इस तरह ऐसे आ रही थी लाइट, ये सुनहरी लाइट, और ये सरूर, ये डिवाइन सूथिंग कंफर्टिंग डिलाइट ऐसे आ रही थी, came on and kept on coming, आ रही थी और फिर kept on coming थी, ये पोजीशन थी। as if we flew slowly their formations, lifting us towards some dazzling of the blessings। As if we flew slowly their formations, lifting us towards some dazzles of blessing। dazzles of blessing का मतलब लिखें, unknown divine spirit has raised one wrong thought might darkens as if the fallen word, and fallen word का मतलब यहाँ पे उसने एक रेफरेंस यूज किया है, किसका, एडम ईव का। फॉलन वर्ड एंड सैल्मन, ये बाइबल से उसने इस्तेमाल की। एंड सैल्मन्स वर ओवर्स as these were the imperishable fish that had let the world pass away। यहाँ पे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के वो रन नोन सेंटेंस जैसे होता है, वैसे थॉट जो है रन नोन थॉट चल रही है, ऊपर से नीचे स्टैंजा तक जा रही हैं। और यहाँ पे पोएट ने क्या किया है कि ये इंसान जो है, इंसानों की जो वर्ड है ये पेरिशेबल है, मॉर्टल है, जबकि मुझे उन फिशेस की जो वर्ड थी, यानी फिशेस जो सैल्मन फिश थी, उनका नज़ारा इतना खूबसूरत था कि वो इमॉर्टल लग रहा था, कि दिस वर्ड विल बी पेरिश बट दिस इज इम्पेरिशेबल।
एज इफ वी फ्लो स्लोली देयर फॉर्मेशंस, और हमें ऐसे लग रहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। उन सेलमिश की जो डिवाइन लाइट है, जो चमक है, जो डिवाइन है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो उनकी चमक है, जो उनकी स्पिरिट्स हैं, हमारी स्पिरिट उनके साथ मिल गई हैं, उस लाइट के साथ एंजॉय कर रही हैं। एज इफ ऐसे लग रहा था वी फ्लो स्लोली कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस डिवाइन लाइट के साथ उड़ रहे हैं, जो उनके से फिशेस, सैल्मन फिश से लाइट निकल रही थी। उन्होंने रोशनी की, उस रोशनी में हमारे बॉडी से सोल अलहदा हो गई, सोल जो है उसके साथ उड़ना शुरू हो गई और उसके साथ फ्लाई करते हुए इस दुनिया से कहीं और कनेक्शन मिल गया। देयर फॉर्मेशन लिफ्टिंग अस टूवर्ड डैजलिंग ब्लेसिंग, और इनकी फॉर्मेशन, ये लाइट हमें इस तरह से फॉर्म कर रही है, या हमें इस तरह उसने फॉर्म कर दिया है। लिफ्टिंग अस टूवर्ड सम डैजलिंग ऑफ ब्लेसिंग, हमें किसी अननोन डिवाइन स्पिरिट ने हमारी सोल को उठा दिया है, रेज कर दिया है, और हम किसी अननोन डिवाइन स्पिरिट के अंडर आ गए। वन रॉन्ग थॉट माई डार्कन्स, अगर एक भी हल्का सा डाउट या खौफ, या हम सस्पिशियस होते, या सस्पिशन आता, या ड्यूबियस होते, या डाउट आता, या कोई इस तरह का मगालता थॉट, ऐसी सोच हमारे माइंड में आती कि जो डाउटफुल हो वो ये नज़ारा कहीं खो ना दे हमसे। एज इफ़ द फॉलन वर्ड्स एंड द सैल्मन्स वर ओवर, कि हमारी जो ये हमें जो जिस दुनिया में ले गई हैं ये सैल्मन फिश, ये डिवाइन लाइट में, ये स्पिरिट्स में, ये खुशी में, ये एक अननोन स्पिरिट्स के साथ हमारी जो स्पिरिट हैं, सोल जो हैं, मिल गई हैं और एंजॉय कर रही हैं, कहीं ये हमारी सारी जो एक नई दुनिया बनी है उसको गिरा ना दे, उसको टम्बल डाउन ना कर दे, उसको ख़त्म ना कर दे, उसको फॉलन वर्ल्ड में ना बदल दे, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये जो दुनिया, हमने जिस दुनिया या जिस जहां में हमें ले गई है, जिस दुनिया में हमें ये सैल्मन स्पिरिट अपनी लाइट्स के थ्रू ले गई हैं, कहीं डाउट इसको ख़त्म ना कर दे, इसको गिरा ना दे, इसको फना ना कर दे और ये ओवर ना हो जाए। एज इफ़ दीज वर द इम्पेरिशेबल फिश, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा था कि ये फिशेस जो हैं इम्पेरिशेबल हैं, इनकी वर्ड जो है देयर वर्ड, या ये जो लाइट है, लाइट इज नॉट गोना फिनिश, कि ये जो उन्होंने हमें दुनिया दिखाई है, या जिस स्पिरिट, जहाँ स्पिरिट हमें ले गई हैं, ये इम्पेरिशेबल है। दे हैड लेट द वर्ड पास अवे, दे हैड लेट द वर्ड पास अवे देयर इन अ मॉव लाइट का मतलब लिखें पर्पल लाइट ऑफ द ड्रेफ्टल लुपन्स, और कहता है कि दे हैड लेट द वर्ड पास अवे, कि ऐसा ना हो ये जो डाउट है हमारी दुनिया को ख़त्म ना कर दे। दे हैड लेट द वर्ड पास अवे, कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है पेरिशेबल है, ख़त्म होने वाली है, जबकि दुनिया, फिशेस की दुनिया जो है इम्पेरिशेबल है। देयर इन द मॉव्स लाइट, और यहाँ पे कहता है कि वो रिवर के अंदर, उस रिवर के अंदर जो लाइट है वो पर्पल है। किस तरह पर्पल हो गई है? ऑफ ड्रिफ्टेड लुपन्स, कहता है कि प्लांट, पर्पल कलर के प्लांट्स की वजह से, द हंग इन द कप्ड हैंड्स ऑफ द माउंटेन्स मेड ऑफ द टिंगलिंग आटम्स, कहता है कि ये जो रफ रॉक्स थी, टिंगलिंग आटम का मतलब लिखें रफ रॉक, और उन रफ रॉक ने अपने अंदर पानी को ऐसे समा रखा था, ये इमेजरी यूज की है। हैंड कप्ड, कि जैसे ऐसे माउंटेन का कप हो और उस कप के अंदर सारा फिशेस, वाटर और सारा कुछ हो। कहता है कि उन रफ वाटर्स ने, उस रफ माउंटेन्स ने अपने आप को कप नुमा बना रखा था, और उसके अंदर पर्पल कलर के प्लांट, उन प्लांट से, पर्पल कलर के प्लांट्स की वजह से उस पानी का कलर पर्पल हो चुका था। बट these mountains contained water in the form of the cup. So the mountains, rough mountains, they turned it into
the form of cup and containing all water plants in the purple color, which were ultimately giving the color to the water, purple like color, and it has transformed like a cup. Imagery है, it's imagery. Poet ने imagery use की है. It had happened then for a sign that we were. ऐसे, और हमें कहता है कि ऐसे साइन या ऐसा इशारा मिला, या हमें ऐसे लगा, फॉर द मोमेंट हमें ऐसे लगा, कहता है लम्हे के लिए हमें ऐसे महसूस हुआ, दैट वी वर वेयर वी वर, हम जहाँ के थे वहाँ ही हैरान, अमेज्ड, परेशान, हैरान खड़े रह गए. Two gold beards came down like swam like men. दो सुनहरी कलर के रीछ आए और उन्होंने इंसानों की तरह, एंड स्विम लाइक मैन, और इंसानों की तरह तैरना शुरू कर दिया अंदर, बिसाइड अस, हमारे पास ही, एंड डाइव्ड लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह गोते खाने शुरू हो गए. इनको यहाँ पे लिखें क्रूवल, नेचर की दूसरी साइड बताई कुवर, इनोसेंस, यानी दोनों आ गई. तो पोएट क्या है, नेचर को क्या लेता है, नेचर अपने अंदर कंटेन करती है. अकॉर्डिंग टू हमारे पोएट के नज़दीक, टेड ह्यूज के नज़दीक, नेचर सिर्फ हीलर, टीचर, गाइड, काउंसलर, कंफर्टर, सूथर ही नहीं है, रादर इट्स अ डिस्ट्रक्टिव, इट्स इनडिफरेंट, इट डज वट एवर इट वांट्स, एंड इट डज both things, not only constructive, it also perform destructive. As stood in the deep water, जैसा कि कहता है हम डीप वाटर में खड़े थे, यानी लाइव खड़े हैं, अलाइव खड़े हैं. as stood in the deep water as on the thrones, और कहता है as stood in, और वो दोनों जो रीच हैं यहाँ पे, इन दोनों की चूँकि रन ऑन सेंस आ रही है ऊपर से, and stood in deep water as on the throne, और वो दोनों जो बियर हैं वो ऐसे खड़े हो गए पानी के ऊपर कि जैसे किसी तख्ते पे खड़े हैं. ईटिंग पिर्स्ट सैल्मन्स ऑफ देयर टैलोन्स, टैलोन्स होता है पंजों से, पिर्स्ट होता है फाड़ना, उन्होंने उनको चीरना फाड़ना शुरू कर दिया सैल्मन फिश को. अब यहाँ पे वो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे उसने आयरॉनिकली कहा है, दीज बियर आर द मैन, दे आर आल्सो मैन, एंड दे कम ओवर देयर इंस्टेड ऑफ enjoying like poet is enjoying, because poet is considering himself refined, intellectual, rational person, and he is enjoying. He says that let the animals live and enjoy their life, like they are having liberty, independence, freedom, and they want that there should be liberty, freedom, and nobody tease them. The same way we should not tease the other animal. Here he is ironically saying some people, they are just piercing, cutting, and eating fish. They are killing fish, catching, and just putting and frying them. So he says that if you are a rational human being, you know you want freedom, you want goodness, you want nobody tease you, so we should not tease the other animals. The people they are catching and cooking and like that fishes, they are also like animals. तो यहाँ उसने आयरनी भी यूज़ किया. आप इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें, पोएट ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऐसे लगता है कि पोएट क्या कहता है, सो वी फाउंड द एंड ऑफ आवर जर्नी. हमने जब ये सब नज़ारा देखा, या जब हमने, तो हमें हमारी जर्नी जो है वो कहता है एंड हुई. सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ द लाइट. हम रोशनी के उस पानी में, कहता है वो सैल्मन्स के अंदर, इन सारी सैल्मन, इन सारी फिशेस के अंदर हम किस में, हम एक रोशनी में खड़े थे. वी आर गेटिंग न्यू नॉलेज. यहाँ पे इससे इस लाइन का मतलब है, हेयर टेड ह्यूज इज टेलिंग दैट सैल्मन लाइट, सैल्मन फिश and their divine light has given us new knowledge. टेड ह्यूज कहता है कि उसने हमें न्यू नॉलेज दिया. हम अलाइव खड़े रहे उनके दरमियान और उसने हमें न्यू नॉलेज दिया. एंड अमंग द क्रिएचर ऑफ द लाइट, क्रिएचर ऑफ द लाइट,
हम कहाँ थे? क्रिएचर ऑफ लाइट में थे, हम डिवाइन लाइट के अंदर थे। चूंकि उन जो सैलमन्स हैं वो क्या हैं? सैलमन, वो है थीम ऑफ वायलेंस। ये है थीम ऑफ वायलेंस, थीम ऑफ वायलेंस वाली ये असाइनमेंट है, और आपने इसको अच्छी तरह देखना है। ये पेज नंबर है 274 पे मेरे पास, आप देख लीजिएगा आपके कहाँ है। इसमें उसने बताना है, जैसे आप मिसाल देंगे इसमें कि 2 गोल्ड बियर कैम डाउन एंड स्वैम लाइक बिसाइड अस, और हमारे सारे इंसानों की तरह तैरना शुरू कर दिया। एंड डाइव्ड लाइक द चिल्ड्रन, और वो दूसरी मासूम साइड भी बताई, इनोसेंट साइड भी, बच्चों जैसे भी तैर रहे थे। एंड स्टूड इन द डेप्थ वाटर ऑन एज अ थ्रोन, और उस वाटर के ऊपर ऐसे खड़े हो गए कि जैसे किसी थ्रोन पे बैठे हुए हैं, तख्त पे बैठे हैं। ईटिंग पिर्स्ड सैलमन्स ऑफ देयर टैलोन्स, और अपने नेल पंजों के साथ चीरना फाड़ना खाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह काउज, इस तरह फुल मून्स एंड लिटिल फ्रेडा जो है, जो हम कल पढ़ेंगे, काउज आर गोइंग होम इन द लैंड्स, वो एक लैंड में जा रही हैं, ठीक है। डार्क रिवर ऑफ द ब्लड मैनी बोल्डर्स, डार्क रिवर ऑफ द ब्लड्स मैनी बोल्डर्स बैलसिंग अनस्पिल्ड मिल्क, और यहाँ पे डार्क रिवर ऑफ ब्लड यानी उनके कलर को रिवर ब्लड, यहाँ पे भी उसकी क्रूवल साइड बताइए, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया है। ये MC रेमनेंस जो है, इंडियन जो है क्रिटिक, इसने कहा है कि एक्सप्रेस द व्यू दैट ह्यूज वायलेंट इमेजरी इन हिज पोएम्स शो द कॉन्टिनेंट्स ऑफ इम्पीरियलिस्टिक सेंस ऑफ पावर्स अमंग द इंग्लिश पीपल। यानी इसका जो ये जो इमेजरी देता है ये बड़ी इम्पीरियलिस्टिक, किसी इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड जैसी लगती है। एक तो वो पोएट लॉरेट रहा है, तो इस वजह से भी वो अपने आप को एक इम्पीरियलिस्ट, जो है जिसने उसको सिलेक्ट किया था वो भी एक इम्पीरियलिस्ट थी। तो इस तरह अपनी पोइट्री के अंदर हाक रूस्टिंग और पाइक और इस तरह की जो भी इसने लिखी हैं उसके अंदर एक एम्पीरियलिस्टिक काइंड है इसने असेंबलीज दी हैं, इमेजेस यूज़ की हैं। Stay blessed and have a nice time, dear student, friend, follower. If you want to join us, our contact number is 0305 6319 Myself, Sarana. Don't forget to subscribe and like our channel. Subscribe and like our channel. Stay blessed and have a nice time. तो यहाँ पे पॉइंट है, ह्यूज एज अ प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द एज। ह्यूज अपनी पोएम का, अपने एज का एक प्रोमिनेंट पोएट है। इससे पहले जैसे अगर हम बात करें, वर्ड्सवर्थ की बात करें, हम कॉलरिज की बात करें, वो अपनी एज के प्रोमिनेंट पोएट थे, और ये भी एक प्रोमिनेंट पोएट है। और थीम किसके लेता है? ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर बड़ी इसकी रिसर्च है। जैसे इसने थॉट फॉक्स लिखी है, तो ऐसे लगता है कि थॉट फॉक्स लिखते वक्त इसने अच्छी तरह फॉक्स का, उसके बिहेवियर का मुताला किया है कि आइडियाज़ जो ऐसे आते हैं, जैसे फॉक्स जो है अपना नोज़ ऊपर करती है, फिर वो अपना फेस थोड़ा सा ऊपर करती है, फिर आइज़ निकालती है, फिर पूरी जो फॉक्स है वो सामने आ जाती है। आइडियाज़ को उसने उसके साथ क्या कंपेयर कर दिया। तो इसी तरह इसका एनिमल्स के ऊपर हॉक इन द रेन जो है वो इसकी बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, हॉक इन द रेन। तो इस तरह ये बताता है कि ये एनिमल्स जो हैं इनके अंदर भी दोनों करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, इन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती हैं, नेचर के अंदर भी पाई जाती है। नेचर हैड बीन इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द रोमांटिक। नेचर जो है रोमांटिक का बड़ा प्रोमिनेंट थीम रहा है, लेकिन वो और तरह से डील करते थे, ये और तरह से डील करता है। ह्यूज नेचर इमेजरी इज़ विविड एंड ग्राफिक। आप यहाँ पे इसी की दे दें नेचुरल इमेजेस, जो इसने यहाँ पे दी है, कप की इमेजरी इस्तेमाल की है वाटर के लिए, ठीक है। जो इसने इमेजरी यूज़ की है टू बियर के लिए। तो इस तरह की इमेजरी जो हैं आप लिख सकते हैं। ह्यूज इज़ अवेयर ऑफ बोथ क्रूवल एंड द माइल्ड एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। वो ये नहीं कहता कि नेचर हीलर है, सूथर है, कंफर्टर है, गाइडर है, कोच है।
he says nature is performing both the act. It is a totally indifferent, sometime cruel, sometime mild, sometime good, sometime bad, sometime destructive, sometime constructive. Both go side by side. नेचर क्रूअलिटी टू मैन एंड एनिमल. नेचर जो है वो क्या, क्रूअलिटी टू मैन्स एंड एनिमल्स. मैन और एनिमल दोनों की तरफ नेचर जो है वो क्रूअल भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, और दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर. ह्यूज एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट इन नेचर. ह्यूज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट था नेचर में. ही स्टडी नेचर वेरी माइन्यूटली एंड वेरी सटली, and he study animals, plants, like these things. Hugh's nature imagery pertain to prehistoric world. sometime वो prehistoric world में चला जाता है. जैसे हमने देखा सीमस हीनी ने टॉलर्ड मैन के अंदर किसको इस्तेमाल किया, टॉलर्ड मैन, उसके अंदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिए हैं, तो ये प्री हिस्टोरिकल चीज़ों को इस्तेमाल कर. वर्ड्सवर्थियन एटीट्यूड एंड स्टाइल इको इन ह्यूज पोइट्री और डिस्टिंक्ट अप्रोच टू नेचर. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ को बताएंगे, वो कहता है हीलर, कंफर्टर, सूथर, और ये कहता है दोनों चीज़ें हैं. ह्यूज एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर मेक हिम यूनिक पोइट्स. तो जिस तरह से वो डील करता है नेचर को, ये उसे ओवरऑल क्या बना देते हैं, यूनिक पोइट बना देते हैं. मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये दोनों असाइनमेंट जो मैंने डिस्कस की हैं, इनके नाम जो हैं वो आप लिख लें ताकि आप इन असाइनमेंट को डिस्कस कर लें. पहली जो असाइनमेंट, ये जो अभी मैंने असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस की है, इसकी हेडिंग आप लिखेंगे ह्यूज एटीट्यूड्स. ह्यूज एटीट्यूड एटीट्यूड्स टू नेचर. यानी ह्यूज किस तरह से नेचर को देखता है, उसका एटीट्यूड क्या है. टेड ह्यूज एटीट्यूड टू नेचर. ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, करंट की बुक 269 पेज पे है. ठीक है, मेरे पास ये आपने देखना है. और इसका मैं फिर बता देता हूँ, इसका जो टाइटल है इसका, डिस्कस ह्यूज, टेड ह्यूज एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर या टू नेचर. एक तो आप ये देखेंगे, ये आपने बताना है. और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने किया है द थीम ऑफ वायलेंस, जो इससे पीछे